हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 10 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंटरपोल। यहाँ पर इंटरपोल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड सोलली ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। And second, Interpol facilitates international police cooperation but does not have the authority to make arrests. आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया एट 19th Interpol Conference of Heads of National Center Bureau said that online radicalization remains a major global security challenge, and internet platforms, especially social media, are utilized by the terrorists for radicalization, indoctrination, recruitment, and financing of terror activities. So Interpol की बात करें तो Interpol facilitates cooperation between law enforcement agencies worldwide, while it provides a platform for sharing information and coordination efforts to combat various forms of crimes, including terrorism. And it does not have its own law enforcement agents and cannot make arrests. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country emerged victorious in both men's and women's categories in 2024 Thomas and Uber Cup? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी रहा है। आपके ऑप्शन हैं जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर डेनमार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें विजेता रहा है चाइना। आप यहाँ देख सकते हैं, द चाइनीज बैडमिंटन टीम confirmed its domination of the sports by winning both the men's Thomas Cup and the women's Uber Cup. And the final of the 2024 BWF Thomas and Uber Cup was played in the Chinese city of Chengdu on 5th of May 2024. So Thomas and Uber Cup is held every 2 years and is organized by the World Badminton governing body, the Badminton World Federation. आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष विजेता टीम रही है चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the joint exercise conducted by the Indian Army and the Indian Air Force in Punjab in May 2024? आपसे पूछा जा रहा है मई 2024 में पंजाब में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वज्र शक्ति, गगन शक्ति, गगन स्ट्राइक या फिर वज्र प्रहार। आपको बताना है कि इस माह आयोजित होने वाली एक्सरसाइज जिसका आयोजन पंजाब में किया गया है उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक। आप यहां देख सकते हैं। So the joint exercise conducted by the Indian Army's Kharg Corps and the Indian Air Force in Punjab is named Gagan Strike. And it is a 3-day joint exercise aimed at refining processes and validating the employment of attack helicopters in support of mechanized operations in developed terrain. So this exercise engages with the multiple aspects of the aerial and ground operations to test and enhance the coordination and efficiency between the two forces. तो आप ध्यान रखेंगे गगन स्ट्राइक का आयोजन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पंजाब में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
What are the positions of Mumbai and Delhi among the top 50 richest cities in the world? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें विश्व के जो अमीर देश हैं उनकी सूची तैयार की गई है। आपको बताना है कि दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में मुंबई और दिल्ली का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 24th एंड 45th, 67th एंड 32nd, 12th एंड 34th या फिर 24th एंड 37th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड की जो रिचेस्ट सिटीज लिस्ट है इसमें मुंबई का स्थान है 24th और दिल्ली का है 37th। आप यहां देख सकते हैं। सो मुंबई with the 24th position and Delhi with 37th position made it into the top 50 world wealthiest cities in 2024. So the latest rankings of the world's wealthiest cities have been released by the Henley and Partners and New World Health. So New York is in the top spot among the top 50 wealthiest cities in the world. Henley and Partners ये एक इंटरनेशनल वेल्थ माइग्रेशन स्पेशलिस्ट है इन कोलैबोरेशन विद द न्यू वर्ल्ड वेल्थ, अ ग्लोबल डाटा इंटेलिजेंस फर्म, recently published this world's wealthiest cities report 2024, which highlights the richest cities globally for the year 2024. आपने देखा कि टॉप 50 में भारत के दो शहर हैं, मुंबई और दिल्ली। फर्स्ट प्लेस पर न्यूयॉर्क है, सेकंड पे है द बे एरिया ऑफ यूएसए और थर्ड प्लेस पर टोक्यो है। यहाँ जो टॉप 10 सिटीज हैं उनकी लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें 10th प्लेस पर बीजिंग है, लंदन 5th प्लेस पर है और सिंगापुर है 4th प्लेस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीप फेक्स। अभी ये काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि डीप फेक के बारे में यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डीप फेक्स आर प्राइमरली क्रिएटेड यूजिंग सिंपल वीडियो एडिटिंग टूल्स विदाउट द नीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड सेकेंड, डीप फेक्स यूटिलाइज generative adversarial network to produce realistic images or videos. और आपको बताना है कि डीप फेक से संबंधित यहाँ पर कौन से कथन सही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So in its first formal response to the use of deepfakes in this election season, Election Commission of India has directed political parties to not share such content on social media, and if they come to know of such content, to take it down within 3 hours and warn the person in the party who had shared it. तो इलेक्शन कमीशन अभी इसको लेके बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। डीफेक्स की बात करें तो deepfakes are synthetic media that have been digitally manipulated to replace one person's likeness convincingly with that of another. So they are created by using deep learning, a branch of artificial intelligence that involves training neural networks with a large amount of data to perform tasks such as image recognition, natural language processing, and computer vision. So deepfakes can be used for various purposes such as entertainment, satire, political propaganda, misinformation, identity theft, and cyber crime. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which day is observed as World Red Cross Day? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 7th में, 8th में, 9th में या फिर 10th ऑफ मई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मनाया जाता है 8th ऑफ मई को। आप यहाँ देख सकते हैं।
So every year on May 8th, World Red Cross and Red Crescent Day honors the efforts of these humanitarian societies, including the IFRC, the largest of its kind. So originating from the 14th International Conference of the Red Cross in 1938, the date marks the birth of Jean-Henri Dunant, the founder of Red Cross, and it was renamed in 1984. So इस वर्ष की थीम की बात करें तो थीम फॉर 2024 इज एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, रिफ्लेक्ट्स द कंपैशन ड्राइविंग देयर एक्शंस। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को, और इस वर्ष की थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which became the first country in the world to get $100 billion in remittances? आपसे पूछा जा रहा है $100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन हैं चाइना, इंडिया, फ्रांस या फिर यूएसए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाला देश हाल ही में हो गया है भारत, जिसकी वजह से भारत अभी काफी चर्चा में रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी, इंडिया रिसीव्ड $111 बिलियन इन रेमिटेंसेस इन 2022. So India, Mexico, China, Philippines, and France were the top 5 countries to receive remittances in 2023. And the Gulf states remained favorite destination for migrant workers, particularly from India, Egypt, Bangladesh, Ethiopia, and Kenya. So भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 100 बिलियन से अधिक रेमिटेंस प्राप्त किया है। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।